We should say no pain, no gain. What does it mean, no pain, no gain? Is unless and until you do not work harder, you will not gain anything. You will not become the champion. Because we want to become a champion, we have to work harder. And we said the three things we have to work on is the mind, the body, Mind, body, and soul. and you have to work on all the three, but you have to work it on daily basis. You cannot do it for 2 days, then you say, okay, I will do it after 5 days. No, it doesn't work like that. You have to work on it every day. So that is why I'm saying that this is I actually here, that you should be telling every day you should chuck. You should chuck. Okay, every day you have to chuck. This is a self-check. For example, somebody has a fever, he chucks with thermometer and chucks the temperature. Every day you have to chuck that you should be. That's what I say I should be. That means you are talking to yourself. I should be better version of me. Or if I say you should be better version of you, that means that every day you check ki, what is my strength of brain, and you work today, for example, and next day you see, are you better than yesterday or not? Listen, what is today? The 2nd July. What is today? July. Second. July. Concentrate. July. This is a very serious talk, and you have to listen very carefully. So don't laugh or think this is just some kind of random talks. No, it is something very important for students. That we are saying today is 2nd July and tomorrow is 3rd July. And whatever strength you have today, your mind, body, and soul, on the 3rd July evening, you have to see yourself. Are you better than yesterday or not? What you are today, are you best? Say you will check on the 2nd July. Tahleel has to come. Wait a second. Let me add Tahleel. On the 2nd July, today 2nd July, you should be better than what you were yesterday. In terms of your body strength also. Are you having more power than yesterday or not? If not, then you have wasted the day. If you are not better than what you were yesterday, then you are wasting your day. Sometimes what happens is you are working and now you say, oh, मैं practice करता था, मैं strong बन गया था, अब नहीं हूँ. That is a bad story. Every next day, you should be better version of what you were yesterday. Getting the point now, what I'm saying? Yes, Yes, sir. sir. So how will this happen? How will this happen? This will happen with a one magic word. There's a magic word. I don't need this basically. We want to draw it from here. Okay. Let me clear this. I will draw it on the OneNote. There is a one magic word which is very important, and that is called as consistency. What is it called? Consistency. That is called consistency. Consistency. What is the consistency or being persistent meaning? One second. If I say like this, and I will. So do we have to write it? Yeah, you have to write. It's very important. You have to write it. So I'm saying consistency. So it means being persistent. That's very important. Being persistent. Increase the font. Can I increase the font? How will the font? Oh, wait a second. Home. In the home, I go here and I will say 28. Now, is this visible now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now I'm making it a little bigger. Yes, sir. Maybe I'll make it 48. Okay.
Now, I am saying that you got to be consistent. You got to be what? Consistent. That means being persistent. Consistency or being persistent means that you are working daily. You are not stopping. It's not like इसको हम बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर काली रात है. ऐसा ना हो. या सोडा वाटर जोश बोलते हैं अक्सर. सोडा वाटर को पता है ना, सोडा वाटर, जब सोडा वाटर आप पीते हैं ना, सोडा वाटर मीन्स एनी कोल्ड ना, फिजी ड्रिंक्स. फिजी ड्रिंक को जब ढक्कन खोलते हैं ना, उसका बड़ा जोश होता है. वो बाहर निकलता है, जूस सारा निकलता है ना, फिजी ड्रिंक, ऑल Yes. द. लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिज खत्म, जोश खत्म. ये नहीं कर ये नहीं करना है. आपको शुरू करना है काम 3 एरियाज पे: माइंड, बॉडी एंड सोल. माइंड, बॉडी एंड ये 3 एरियाज हैं. आपको हर रोज, एवरी डे, you have to work on it as per your capacity. Different people have different capacity. Okay, maybe I can do 50 push-ups, but Zan can do maybe 10, right? It doesn't mean anything. It doesn't mean anything. If you can even do 1 push-up or not a push-up, it's not a problem. Problem is, are you starting to work on the 3 departments or not? Are you working on your body? Are you working on your soul? Are you working on your, brain or not? Soul, people have forgot about working on a soul. People have forgot to working on a soul when soul is very important. If you don't work on a soul, what do you call it in Islam? That you have to work on iman also. हम ईमान पे मेहनत ही नहीं करते. हम कहते हैं शायद ये तो ऐसे ही है. अबे यार, उस कैसे हो सकता है? ईमान पे मेहनत नहीं करेंगे, वो कैसे ग्रो होगा? उसके लिए भी खाना जरूरत है. You know, you need a food to eat to make your body strong, right? Same is, you need to have a food for your soul. So that is your assignment today. That is Like Namaz and Quran. maybe this is your assignment. What is the food for the soul? What is the food for the Namaz. Definitely, you're right. But what is the food for your soul? That is the assignment you will tell me tomorrow. You prepare for that, everybody. I want you to work on it. I want you to work on it. Write down what is the food for your soul. Like you eat your rice, chapatis, and meat and chickens and whatnot for your body. That is the food for your body. And what is the food for your soul? That is important. Now, one last thing I will tell you before we move on to the Tajweed class is that God has given us a very beautiful body. The body, which has a brain, which has muscles, the skeleton, it is on what principle your body becomes stronger. I want to make you understand this thing. Listen carefully what I'm saying. If, for example, let me stop sharing and let you focus. Spotlight. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Now look here. If I have my hand and I tie my hand here, now primarily it looks like a little stronger. I got a muscles. Oh, it's a stronger, right? But if I tie my hand here with some knot, and I will not do any work with this hand. I will not do any work with this hand. I keep it like this. I will work only with the left hand. You know how our body will react? Our body will see that this hand do not need to do any work. It will stop even supplying blood to this arm because it says it's a waste. Because our body optimizes everything. It sees that this body part is not actually working. Stop feeding it. It will become so weak. It will become so weak that I cannot even take a pen in my hand. It will become so weak that even it will be hard to take a pen. Instead, if I do one thing, I will use a bigger weights and I lift weights with this hand. I make it work. The body will make it so strong that the weight which you are lifting was looking like a heavy weight. After few days, it will look like a
lightweight. Why? Because you're stronger. Body will make it. This is how body works. Our body, if you make your body work, okay, if you put your body in a tough situation, the body will make you stronger. Okay, the body will make you stronger. That is true with your brain also. If you do not read maths, if you don't do practice, no questions, don't solve. And if I say what is 2 times 2, you will forget. You can't solve it because you become stupid. But if you make your brain work, if you practice questions, okay, you make your brain what? Work. You test it. What is 2 times 20? What is 3 times 40? You are testing your brain. You're working. The brain becomes intelligent. It will become stronger and stronger and stronger. Same is with everything. You practice more, you become perfect. You become what? Perfect. But Perfect. to achieve anything, if you have, this is a Quran class, and if you are not consistent, that is, you are not persistent, means you are not regular. When in short terms, we can say, if you want to say what is being persistent, what is being consistent, it means you got to be regular. You got to be what? Regular. If you are not regular, you will achieve nothing. You will achieve zero. You will be every time beginner. You will be every time beginner. This is for everything. This is for maths. This is for science. This is for Islamic knowledge. This is for Iman. This is for your body. You are doing exercise. You are started doing push-ups, but you stop. You don't do it now. You are again becoming weak. Next time you come, next year you come, you are again same week. You hang yourself on a rod, and if you are not able to do the pull-up like this, that means you are again a weak. You are not having no power. But if you only, you have a rod and you hang yourself, only hang. You're not able to pull up. You're only hanging yourself. Slowly and slowly, your back muscles will become so strong that you stop pulling yourself up. Now you're having a lot of energy. Same is with your brain. You are working on the math, you are working on the Olympiad, you are working on the Acer, you are working on the, let it be just 20 minutes only. Say Olympiad आप 15 मिनट पढ़ रहे हो. यहाँ देखो, why are you right? Listen to me. Don't write. Look here. Keep pen down. If you are working on Olympiad, just how many times? 15 minutes only, but you are working daily. In a month or two, you will grasp all the concepts, you will be champion. But if you do, today I will read, tomorrow आज उधर जाना है, आज ये किया, because you don't have, I told you, don't write. Because आज उधर गए फिर उधर गए, no, you have to have a principle in you. You have a discipline कि भाई मुझे इतने बजे उठना है, इतना मुझे साइंस पढ़ना है, इतना मुझे मैथ पढ़ना है, इतना मुझे उर्दू पढ़ना है, ठीक है, इतना टाइम मुझे खेलना है. बस अगर 1 घंटा खेलने का है, बस 1 ही घंटा खेलना है. You should have a timetable. Time management is very important if you want to do anything in your life. You are getting my point, what I'm saying or not? If you Yes, don't sir. follow Thank these you, things, sir. listen, if you do not follow these things, what I'm saying, then you will do nothing in your life. I can bet on me. क्योंकि आगे ऐसे बच्चे आपके हैं जो dedicated है, जिनमें dedication is one more word which you need to learn all the time, is being dedicated, is being what? Dedicated. You need to have dedication. Write down dedication. You have to write these words on your brain. You getting? You have to write these words on your brain. You have to be all the time with this dedication. You have to have the what is called as the perseverance. Perseverance. Dictionary खोल के इनका meaning लिखो. Copy पे लिखो, इनको पहले पेज पे लिखो. ठीक है? And इनको imbibe करो in you. You need to have the perseverance. Now what? I want Zan you to write this on the first page of your copy and talk to yourself. Am I perseverant? Am I dedicated? Am I persistent? Am I consistent? And you have to work with the zest and zeal. Okay? But you will not work. Remember, you will never work unless
You do not have a goal. Do not have what? Goal. Zest and zeal Goal. means Goal. मन लगा के. Zest and zeal means पूरा मन लगा के, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो. ये देखना है आपको कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं आज, क्या मेरे आर्म स्ट्रांग हुए, क्या मेरे लेग स्ट्रांग हुए या नहीं. I will give you later the regimen of how to make your arm strong, back strong, etc., etc. We will work on all the three departments. We'll work on the mind, we'll work on the soul, and we'll work on the body. All the three. But you have to be, you have to be consistent, you have to be persistent, and you need to be dedicated. If you're not dedicated, then you won't do anything. And you need to have that perseverance. There is some spelling mistake in perseverance, I guess. That is perseverance. And whatever you do, ab jo bhi kaam karo, you do it with zest and zeal. You do it with what? Zest and zeal. But you will never do it unless you don't set the goal. You have to set your goal. You got to set the goal. If you're not setting the goal, you will not work. For example, in your class, you have to set goal that why that particular student is getting 10 out of 10 and I'm not getting. Why so? And make your goal that I have to get 10 out of 10. Now, when you have that goal in your mind, you will start working on it. It is not your father or mother telling you, oh, but beta, padho, aap pad kyun nahi rahe ho? No. उल्टा होना चाहिए. आपका पापा आपको बोलना चाहिए, यार इतना क्यों पढ़ रहे हो, ज्यादा पढ़ रहे हो, आंखें खराब हो जाएगी आपकी. लेकिन अगर आपके पास जेस्ट एंड जील होगी, आपको पता, आपने गोल सेट किया हुआ है कि मेरे को 10 आउट ऑफ 10 लाने हैं, तो फिर आपको पापा नहीं बोलेगा कि यार एग्जाम है. फिर पापा नहीं आपका बोलेगा, मम्मा नहीं बोलेगी कि आपको फलानी क्वेश्चन किया आपने, फलाना चैप्टर किया आपने. बल्कि आपका पापा, आपकी मम्मा आपको बोलेगी कि यार इतना क्यों पढ़ रहे हो आप बहुत पढ़ रहे हो ज्यादा, अब कम करो यार. क्योंकि आप में जेस्ट एंड जील होगी. अगर जेस्ट एंड जील नहीं है, गोल सेट नहीं किया, तो आपको पिटाई पड़ेगी. पढ़ क्यों नहीं रहा, अरे यार पढ़ना. जो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ हो रहा है, पापा मम्मा परेशान होते हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा, इसको एग्जाम है. बच्चे को फिक्र नहीं, क्यों नहीं फिक्र? क्योंकि उसने गोल ही सेट नहीं किया, उसमें डेडिकेशन ही नहीं है. उसने अपने अंदर ये ऐसे थोड़ी ना आएंगी. परसिवरेंस ऐसे नहीं ना आएगी. ये तब आएगी जब इसके ऊपर आप काम करोगे. आपको अपने आप के साथ बात करनी पड़ेगी. यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ. यू हैव टू एवरी डे टॉक टू योरसेल्फ दैट डू आई एम आई डेडिकेटेड. कहीं मैंने ज्यादा वक्त जाया तो बातों में तो नहीं किया, मैंने उसमें तो वक्त. फिर आपको जब टाइम टेबल अगर आपका सेट हो गया, तो आपको हर चीज में मजा आएगा. आपको क्योंकि एक अटेंटिव माइंड आ जाता है. इवन अगर आप खेलते हो ना, आप ज्यादा खेलते हो, आपको उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है वो काम नहीं करता. लेकिन जब आपको पता है कि मेरे को 1 ही घंटा खेलना है, तो उसमें आप पूरी एनर्जी के साथ खेलते हो. उसमें एक लगन आ जाती है, मजा आ जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो आप गोल है, पढ़ाई का गोल है, पढ़ाई का गोल है. शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है. एक शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मेरे को फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं आएगी. जरूरी नहीं कि फिर आए. अगर आपने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेहनत की, फिर आए या नहीं आए डजंट मैटर, लेकिन क्यों नहीं आनी चाहिए ना. मतलब यू शुड आस्क योरसेल्फ, अगर फलाने बच्चे को, उसको आ रहे हैं क्लास के अंदर 10 आउट ऑफ 10, मेरे को क्यों नहीं आएंगे. क्या मुझ में कमी है? कि मेरे पास आंख नहीं है? क्या मेरे पास कान नहीं है? क्या मेरे पास जबान नहीं है? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है. जो उस बंदे को, वो आपके पास भी. ओनली चीज जो है, अगर वो फर्स्ट आ रहा है, आप नहीं आ रहे हो, उसमें डेडिकेशन होगी. वो पढ़ रहा होगा. जब आप लोग खेल रहे थे, वो पढ़ रहा था. गेटिंग? तो यू हैव टू चेंज द गियर. यू हैव टू चेंज द गियर. दूसरे बोलने चाहिए काइफा को पोजीशन कैसे आती, मेरे को क्यों नहीं आती. अब ये नहीं होना चाहिए कि उसको पोजीशन आ रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं आ रहे. नो, ये नहीं होना चाहिए. उसका उल्टा होना चाहिए. सबको मैं कह रहा हूं कि वो बाकी लोग अब कहने चाहिए कि यार यार इनको कैसे पोजीशन आ रही है, ये कैसे टॉप है. अब टॉप सिर्फ बनना पढ़ाई में नहीं है. जब आपका सोल टॉप पे होगा, तो आप में डिसिप्लिन जबरदस्त होगा. आपका टीचर कॉम्प्लेन नहीं करेगा, वो आपकी एग्जाम्पल्स देखा, वो कहेगा देखो ये जैन जो है, ये क्लास में सबसे डिसिप्लिन बच्चा है.
अगर आपका पापा उधर जाएगा, बोलेगा यार ये जैन थोड़ा शैतानी करता है, टीचर बोलना चाहिए क्या बोल रहे हैं सर, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। क्योंकि अगर आपका सोल जो आपने स्ट्रेंथन किया हुआ होगा, फिर आप कभी भी कोई शैतानी नहीं करोगे। देन यू विल बी डिसिप्लिन्ड, देन यू विल बी व्हाट। डिसिप्लिन। बच्चा मेरी बात समझ आ रही है कि बोर हो रहे हो? सर समझ आ रही सर समझ आ रही देखो, जब कोई मकान बनाते हैं ना, मकान मकान बनाते जो है, उससे पहले क्या बनाते हैं? उसकी बेस। कभी देखा है मकान बनते हो? है। तो पहले उसकी यस बेस। सर। मकान ईंटों का सज्जा बनता है, यस लेकिन सर। बेस किसकी बनती है? पहले मकान। मकान बनता है कमरों की। ईंटों का, लेकिन बेस। अगर मकान की बेस ही नहीं अच्छी होगी, मकान कैसे चढ़ेगा ऊपर? मकान की बेस किसकी बनती है? सर सीमेंट। लकड़ी। वो रॉक्स की बनती है, या कंक्रीट ब्लॉक्स की बनती है। हालांकि ऊपर वाला जो ब्रिक है ना, वो वीक होता है, लेकिन बेस बना स्ट्रांग बनानी होती है। तो ये आपकी बेस में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी बेस है। रखो पेन यहाँ पे। सर अगर बेस स्ट्रांग होगी तो पूरा मकान भी फिर स्ट्रांग रहेगा। एग्जैक्टली, अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो मकान गिर जाएगा। तो वो यही बात है कि अगर आपका सोल स्ट्रांग है, अगर आपका देन यू विल बी गॉड कॉन्शियस। आपको पता है अल्लाह अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मुझे किसी ने नहीं देखा ये करते हुए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक। लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक दिन हुआ था कि मेरे पास क्रिकेट मैच था। पहली बात ये थी कि क्रिकेट खेलने मुझे दे नहीं रहे थे घर में। उसके बाद क्रिकेट मैच खेलने के बाद मुझे बहुत दिनों से ना फुटबॉल मैच खेलने का मन था, और मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही थी। और जिस दिन मैं क्रिकेट मैच खेला, जिस दिन मैंने, क्रिकेट मैच खेला। उसी उसी दिन शाम को 4 बजे मुझे न्यूज आई, मेरा फ्रेंड आया, उसने बोला आप सिलेक्ट हो गए हो फॉर द फुटबॉल मैच। क्या बोला? आप अब सिलेक्ट सिलेक्ट हो हो गए गया हो फुटबॉल फुटबॉल में। में। फुटबॉल मैच। अब मैं इतना खुश था कि मेरा मतलब फुटबॉल में मैं सिलेक्ट हो गया, बख्शी स्टेडियम में मैच था। हालांकि मैं, लेकिन मगर दिन में क्रिकेट खेला हुआ था मैंने। तो अब परेशानी ये थी कि घर में क्या बोलूं। मैं बहुत परेशान था, करूं तो करूं क्या? वो तो पता ही था पापा थप्पड़ मारते, एक इधर से एक उधर से। तो खेलने की तो बात ही नहीं थी, तो थप्पड़ जरूर खानी थी। तो मैं चला गया मैच खेलने। क्या चला गया? मैच। और जब मैं वहां से आया, एक तो दिन मैंने क्रिकेट में गुजारा था, और दूसरा मैंने फुटबॉल में। ये तो बहुत शैतानी हो गई ना, एक्स्ट्रा शैतानी हो गई। अब तो मार खाने की बारी थी। लेकिन जब मैं वापस आया, जब मैं क्या आया, तो मैं अंदर से सोच रहा था कि मैं पापा को बोलूंगा कि हम फ्रेंड्स डिस्कशन कर रहे थे पढ़ाई के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी में टाइम लग गया। तो अब मैं अंदर से ये झूठ सोच रहा था कि मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ रहा था। तो फिर मैंने कुछ वहां से ना एक फ्रेंड को कॉपी भी ली। मैंने कहा कॉपी मुझे दे दो, मैं बोलूंगा घर में मैं पढ़ रहा था। तो क्योंकि लेट हो गया था, तो पिटाई खाने से तो मतलब ये था कि मैं बोलूंगा कि मैंने पढ़ा था वगैरह वो ये। लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो मैंने सोचा, मुझे मौली साहब हमारे पास एक थे जुमा प्रेयर्स पे, उसने इस पे वाज पढ़ा था कि झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए। अंदर से मुझे बहुत हर्ट हो रहा था कि मैं झूठ बोलने जा रहा हूँ। फिर घर पहुंचते पहुंचते मैंने सोचा, मैं पिटाई करो खाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, कि आज पिटाई में खाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं मैं सच बोलूंगा कि मैं दरबदरी करके आया, फुटबॉल खेल के आया। मैं मैच था, मैं खेल के आया। मैंने कहा मैंने कॉपी वॉपी जो है वो साइड में रखी। मैंने बोला मैं आज पिटाई खाऊंगा, मौली साहब ने बोला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेट इट की पढ़ाई। जब मैं घर पहुंचा, ये मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं घर पहुंचा वहां कुछ मेहमान आए थे। मैं पूरा इंतजाम करके रखा था कि आज मार खानी है, तो मैं तैयार था कि मार खानी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वहां क्या हुआ कि वहां कुछ मेहमान आए हुए, और किसी को पता ही नहीं कि मैं फुटबॉल खेलने गया था। ठीक है, तो मुझे किसी ने पूछा ही नहीं तू किधर था। उनको सबको शायद ये पता था कि वो ऊपर कमरे में है। ठीक है, तो जब मैं आया तो वो मेरी मम्मा आ गई, तो तुझे चाय पी, चाय नहीं पीनी है? वो एक चाय दे रहा है, कुछ कह रहा है, एक वहां से वो केक दे रहा है कुछ। मैं परेशान हो गया, यार ये क्या मामला हो गया। ये मुझे पिटाई के बदले केक मिल रहा।
और मैं चुपचाप बैठा, मैंने कहा ना झूठ बोलूंगा ना सच बोलूंगा, मैं चुप करूंगा अब। ठीक है। सो मतलब ये है, कहानी का मॉरल ये है कि ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप झूठ बोलोगे, अगर आप झूठ बोलोगे। टेम्पररीली आपको लगेगा कि भैया मेरे को फायदा है, लेकिन नहीं है फायदा। ये याद रखना चाहिए, किसी भी गलत काम में फायदा नहीं है, ये धोखा है। और अल्लाह ताला देखता है, और अगर आप अल्लाह ताला को समझते हो कि अल्लाह ताला देख रहा है और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते निकालेगा, ऐसे रास्ते निकालेगा, आपको सोच में भी नहीं होगा, आप समझ में भी नहीं होगा कि वो आपको कैसे मदद करेगा आपकी। और आपको जैसे गेम खेलते हैं तो आपको लगेगा कि मैं चीटिंग करके शायद जीतूंगा, चलो मैं चीटिंग करता हूँ। यार कभी कामयाब नहीं हो जाओ, आज नहीं तो कल बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑनेस्टी के साथ खेला, तो अल्लाह ताला ऐसी बरकत डालेगा, ऐसी बरकत डालेगा कि जो गेम आप हार रहे थे वो आप जीतोगे। यू गेटिंग द पॉइंट? अल्लाह ताला आपको, जो रब है ना वो टेस्ट करता है। जैसे आप जैसे जो, खासकर आप जैसे बच्चों को, जो बड़े होते हैं थोड़े से गुनाह में फंसे हुए होते हैं, उनको तो जैसे जो ये हार्ट है, क्या है, जो हार्ट होता है ये वाइट होता है। क्या होता है? जब इंसान गुनाह करता है ना, जब इंसान गुनाह करता है, उस पे इस पे एक ब्लैक डॉट लग जाता है। तो फिर दूसरा गुनाह किया, दूसरा डॉट, तीसरा गुनाह किया, तीसरा डॉट, एक दिन ये पूरा काला ही बन जाता है। अब अगर काला पेपर है उस पे एक ब्लैक डॉट है, वो पता नहीं चलेगा ना, उसमें तो समझ नहीं आएगा। तो बड़े अक्सर ऐसे ही होते हैं, उनके दिल पूरे काले हो गए होते हैं गुनाह करके करके। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, अल्लाह ताला को उनसे बहुत प्यार होता है। क्यों? क्योंकि उनका दिल जो होता है कंप्लीट वाइट होता है। लेकिन अगर उस पर छोटा सा भी वाइट ब्लैक डॉट पड़ गया ना, वो सीधे दिखता है, ओ ब्लैक डॉट पड़ गया यानी कि गुनाह किया। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा हमेशा गॉड कॉन्शियस रहना चाहिए। इसे कहते हैं गॉड कॉन्शियस रहना। क्या रहना? गॉड यानी कि मूल शब्द फ्राइडे यानी को कि बोला था। आपको हमेशा याद रखना है कि अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह सुब्हान व ताला क्या देख याद रखना चाहिए। अगर आपने अल्लाह सुब्हान व ताला को हाजिर नाजिर जान के कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबी देगा, ऐसी कामयाबी देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने झूठ का सहारा लिया, अगर आपने डिसऑनेस्टी का सहारा लिया, अगर आप सिंसेरिटी का सहारा नहीं लिया, तो चीटिंग की आपने किसी भी गेम में कहीं पर भी, तो आप गोया कि आप गोया कि आप समझ रहे हो कि अल्लाह ताला देख ही नहीं पा रहा है। नौजुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिक। अगर आपने चीटिंग की, खदीजा, किसी भी चीज में, आयशा, गेटिंग, so it is as if you are saying that God is not seeing me. You getting my point, जिगर? फातिमा Yes, sir. आ गया जी, सीधे करो। So listen to me. I will tell you one more little story because हमारे पास 6 ही मिनट बच गए हैं। आज इसी में जाएगा क्लास। कल से हम कॉपी लेना, हमजा की प्रैक्टिस करेंगे। हमजा, we'll talk about the hamzatul wasl and hamzatul qata and their rules tomorrow. Yes, sir. But this is very important for the base. देखो, अल्लाह ताला ने एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा होगा वो आपको पहुंचता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो उसमें सवाब आएगा। अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो उसमें गुनाह होंगे। एग्जाम्पल है कि एक सहाबी थे और उनके साथ जो थे, गालिबन अली करदौजी थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली दिस टाइम। एक सहाबी थे, सहाबी मींस द पर्सन हु हैज सीन द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड ही हैड अ वन पर्सन विद हिम, और वो इसके साथ जा रहे थे। अब वो जो जो बंदा उनके साथ था, सहाबी के साथ, वो उसको रास्ता दिखा रहा था। अब जब ये चल रहे थे तो सहाबी के दिमाग में आया कि मैं 70 दिरहम इसको दूंगा क्योंकि इसने मेरे बहुत काम किया है, मेरे साथ आ गया, मैं इसको 70 दिरहम दूंगा। कितना दूंगा? 70 दिरहम इज लाइक ए करेंसी, लाइक ना जैसे आपको रुपीज है 70 रुपीज, ऐसे ही अरब में दिरहम होते थे, करेंसी, जैसे डॉलर्स अमेरिका का है।
अब एक जगह पे सहाबी ने कहा कि मैं नमाज पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? नमाज। और केयरफुली लिसन व्हाट आई एम सेइंग एग्जैक्ट। तो जब सहाबी ने नमाज शुरू की, जो ये बंदा वहां पे था, उसको कितने मिलने वाले थे इस सहाबी से? 70 दिरहम। 70 दिरहम। कितने मिलने वाले थे जैक? 70 dirham. 70 दिरहम। लेकिन उसको उसने उसको बताया नहीं था, लेकिन उसके अंदर दिल में ख्याल था कि आई विल गिव हिम 70 दिरहम। जब वो नमाज पढ़ने गया, इस बंदे के दिमाग में चोर घुसा। उसने कहा कि सैडल जो होती है ना, घोड़े के ऊपर जो सैडल होती है ना, सैडल्स पे बैठते हैं वो कवर, यस सर। उसने वो चोरी किया। उसने क्या किया? वो चोरी। भाग गया, और वो भाग गया। अब जब सहाबी ने नमाज फिनिश की, उसने देखा कि ओ, घोड़े के ऊपर तो सैडल है ही नहीं और वो बंदा भाग गया। तो उसको अफसोस हो गया कि उसने चोरी किया एंड ऑल दैट। अब वो पहुंच गया, वो खुद अकेला गया और पहुंच गया शहर में। जब वो सिटी में पहुंचा, उसने अपना सैडल एक दुकान के ऊपर देखा। उसने क्या देखा? सैडल कहाँ पे देखा? दुकान के दुकान ऊपर। दुकान के ऊपर वो सैडल देखा। अब ये बंदा जो है, ये सहाबी जो है, ये ही वेंट टू दैट शॉप एंड ही आस्क्ड हिम, ये सैडल जो है ना, ये मेरा है एक्चुअली, लेकिन ये चोरी हो गया। तो उसने कहा, भाई साहब, मुझे एक बंदा आया, उसने दिया, मैंने उसको पैसे दिए। तो उसने उसको कहा, आपने उसको कितने पैसे दिए? तो दुकानदार ने कहा कि मैंने उसको 70 दिरहम दिए। 70 दिरहम दी। मैंने कितने दिए? 70 70 dirham. अब जो वो बंदा था जिसने चोरी की, उसको कितने मिले? 70 दिरहम। अगर वो चोरी नहीं करता तो उसको कितने तो मिलते? भी उसको 70 दिरहम। 70 दिरहम। तो भाई 70 साहब, ये dirham. लेसन है आप लोगों के लिए कि जो आपको मिलने वाला होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन अब आपकी अक्लमंदी और बेवकूफी दोनों है। अगर आपने बेवकूफी की, जैसे उस चोर ने की, उसने चोरी करके वो 70 लिए, वो जहन्नम में जाएगा, 70 दिरहम वही थे। लेकिन अगर वो चोरी नहीं करता तो उसको 70 दिरहम मिलते वैसे भी। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। सो पता क्या चला? तो पता क्या चला इससे? सर क्या चोरी नहीं चाहिए। पता ये चला आपको कि नहीं if you चाहिए। are- पता ये, चोरी करनी if you are God चाहिए। conscious, if you are God conscious, अच्छा। आपके स्कूल के अंदर आपने एक बड़ा जबरदस्त पेन देखा, नीचे गिरा हुआ है। आपने नीचे देखा गिरा हुआ एक पेन है, कोई नहीं है वहां पे, और आपने पेन देखा, आपने चोरी नहीं की, पेन देखा वहां पे गिरा हुआ था। लेकिन अगर आप गॉड कॉन्शियस, अगर ऑनेस्ट होंगे ना, ऑनेस्ट पर्सन, you will never pick that pen, and you will grab that pen and give it to the teacher. It is somebody's pen, it's not yours, it's not mine. That is called honesty. If you play game, आपने देखा कि ये मुझे एज लगा है, मैं आउट हो गया हूं, या ये बैडमिंटन में अवे गिरा हुआ है, आपने देखा है, लेकिन अपोनेंट कह रहा है कि नहीं, ये अवे है, आपने देखा ये इन है, हालांकि अपोनेंट आपको उधर से ही कह रहा है कि भाई ये अवे है, लेकिन आप ऑनेस्ट हो, आपको कि नो, आई एम ऑनेस्ट, आई एम गॉड कॉन्शियस, ये ब्लैक डॉट अपने दिल पे नहीं लगने दूंगा, अपने हार्ट को वाइट रखूंगा। कैसा रखूंगा? वाइट। ये देखा, ये अवे है, ये अवे है। अगर मैं गेम हार भी लेता हूं, लेट इट बी, बट लेकिन अगर आप गेम हार भी जाते हैं ना, फिर भी आप जीतोगे अगर आप ऑनेस्ट होंगे। अगर आप वो गेम हारोगे भी, लेकिन अगर आपने ऑनेस्टी दिखाई, आपने असल में गेम जीती, क्योंकि आपने अल्लाह के कोर्ट में गेम जीती। किसके कोर्ट में? अल्लाह We have a less than a minute, so you have to promise yourself and you have to talk to yourself कि क्या अपने माइंड पे, अपने बॉडी पे और अपने सोल पे आज काम किया, एंड आर यू अ बेटर वर्जन ऑफ व्हाट यू वर यस्टरडे। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट, इट मेक योर फोन बेटर एवरी डे, you update the software in your phone or in your gadgets. Same is you have to upgrade your software of body, mind and soul. So it's not a promise, you will work on that.
Yes, Is that a promise? So words, Yes, sir. every day you should be a better human being. आपको तमीज आना चाहिए every day